think let me share the board. Okay, तो हमारा ये था, it is about जो हमारा दूसरा है, it is about relations between जो main दी है p of z and p dash z, उनके zeros वगैरह वगैरह. Now we start with, say, this idea of Rolle's theorem. अगर तुम्हें याद हो, if you have a differentiable function from, say, interval a to b to r, then if such that f of a is equal to f of b, suppose it's equal to 0, then f dash c is equal to 0. Differentiable function अगर है for some c lying between a and b. So it gives us a relationship between zeros of a function which is differentiable and continuous, whatever. चलो differentiable हम लेते हैं. Differentiable होगी तो continuous तो होगी. लेकिन आइडिया यही है कि between any two zeros there would be a zero of the derivative. So that means अगर मैं polynomials लूँ in particular, so a real polynomial that takes its values inside real numbers, यानी मेरी डोमेन में रियल नंबर्स हैं, राइट, और मेरा कोडोमेन भी रियल नंबर्स हैं, तो इसके जीरोस हैं, यानी वो वाले वैल्यू, सपोज इट इज x1 x2 सच दैट p of x is equal to 0, मतलब फॉर से x equal to x1 x2 so on and so forth, then we अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, so p dash समथिंग यहाँ पे होगा कोई, let me call it y1, such that p of y1 is equal to 0, provided these are real numbers, because Rolle's theorem is about real functions. Similarly, अगर इसका तीसरा 0 यहाँ पे हो, तो अब चूंकि यहाँ पे p वैनिश हो रहा है, सपोज अप टू xn है, यहाँ पे वैनिश हो रहा है, तो इनके बीच में भी इसका डेरिवेटिव वैनिश होगा, यानी कोई यहाँ पे y2 होगा जहाँ पे p वैनिश होगा. कहने का मतलब, if you have zeros of a polynomial on a real line, if you have zeros of a polynomial on real line, अगर सारे के सारे zeros उसके suppose x1, x2, xn ये किसी इंटरवल में suppose है, suppose यहाँ पे a है, a से b तक किसी इंटरवल में, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं, ऑफ कोर्स वो हर दो जीरोस के बीच एक क्रिटिकल पॉइंट होगा, यानी जहाँ पे डेरिवेटिव वैनिश करता है, suppose y1, इसी तरह से यहाँ होगा y2. इन शॉर्ट, अगर किसी इंटरवल में सारे के सारे जीरोस हैं, तो उसी इंटरवल में सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स भी हैं, provided all the zeros where the polynomial vanishes are on the real line, so that that polynomial would also have real coefficients. So that's the idea. Is there any generalization? Now, if I take a function, but Rolle's theorem in general is not true for complex functions. Now, you could take, suppose, f of z to be e raised to power iota z minus 1. Now, we know that f of 0 जो है वो 0 है, f of 2 pi जो है वो भी 0 है, because e raised power iota 2 pi is 1. तो of course चूंकि ये complex, मुझे पता है यहाँ पे इसका 0 है, दूसरा 0 यहाँ पे है, तो इसके डेरिवेटिव का अगर मैं 0 ढूंढना चाहूँ, that would be f dash z would be iota into e raised power iota z. But this is never 0. इसका तो कोई 0 ही नहीं है इसके डेरिवेटिव का. तो in general, once we start with complex numbers, तो उनके लिए Rolle's theorem true नहीं है. There is no 0 of the critical point, or the critical point of this function, that is the 0 of the derivative that lies between the zeros of the function. यहाँ पे दो 0 हैं इस function के, और भी हैं, you could also take 4 pi, लेकिन इसकी जो derivative है वो कहीं पर भी vanish नहीं होता. So we cannot apply in general Rolle's theorem to complex functions, or even real polynomials which have got, no, you can have a real polynomial यानी जिसके coefficients real हैं, लेकिन उसके जो zeros हैं वो complex numbers हैं, तो तब भी हम Rolle's theorem won't apply. So, but we do have a generalization of this Rolle's theorem
what we could talk about, Gauss-Lucas theorem. Gauss-Lucas theorem कहता है अगर तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है और मान लो एक डिस्क में एक सर्कल के अंदर इसके सारे जीरोस हैं, मतलब जहां पे ये वैनिश होगा, z1 z2 इस रीजन में है, p ऑफ सपोज zi इज इक्वल टू 0, तो इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं यानी वो वाले पॉइंट्स जहां पे p डैश z वैनिश होगा, वो वाले पॉइंट्स भी इसी में होंगे, इसी डिस्क के अंदर होंगे. It's rather easy to prove. Furthermore, actually there is much more. Actually हम ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर z1 मान लो ये 0 है, z3 है, अगर मैं इसका कॉन्वेक्स हल लूं, मतलब इन सबको जोड़ दूं ना, जो इसकी बाहरी बाउंड्री होगी ना उसको बोलते हैं इन सबका कॉन्वेक्स हल, तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स इस कॉन्वेक्स हल के अंदर ही रहेंगे, विच मीन्स ऑफ कोर्स अगर वो इस डिस्क में है तो क्रिटिकल पॉइंट्स भी उसी डिस्क में रहेंगे. ओके, इसके बहुत सारे प्रूफ है लेकिन हम सिंपल वाला करेंगे. तो लेट मी स्टेट गाउस-लूकस थ्योरम. Lucas theorem. Now, if all the zeros of a polynomial अच्छा मुझे ये बता दो, वो आमिर है वहां पे? आमिर, आर यू देयर? हाँ, इज आमिर प्रेजेंट? हेलो सर. आमिर, तुम वहां पे हो? सर. हाँ, तो अटेंडेंस का तुम देख लेना, ठीक है? ओके सर. ओके, मुझे याद दिलाना पड़ता है. ओके ओके, सो जो हमारी स्टेटमेंट है वो जो मैंने अभी कहा यही स्टेटमेंट है Gauss-Lucas theorem की. Zeros of a polynomial, let me call it p of z, that would be, can write it as जैसे कि हम लिखते हैं a n z raised power n plus a sub n minus 1 z raised power n minus 1 plus so on and so forth a1 z plus a naught is a polynomial of degree, of course इसकी n है, of degree n, इसको जरा minimize करते हैं, okay, degree n. If all the zeros lie in the disk mod z less than equal to this capital R, then all the zeros of its derivatives, all the zeros of its derivative also lie in the same disk, also lie in mod z less than equal to R. Actually मैं टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा हाथ इतना ठंडा हो गया मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ. Okay, so let's do the proof. So let z1, मतलब इसके चूंकि nth डिग्री पॉलिनोमियल हो तो इसके n zeros होंगे, और let z1 z2 up to zn be the zeros of pz, so that I can then factorize it and I can write मतलब ये सारे मान लो कहाँ पे है, all pure zeros of pz, so that जो कि हमारे हिसाब से ये है कि जो zi है it should be a zj, लिख लेते हैं, zj is less than equal to r for all j running from 1 to n. So I can write p of z as, so then we have, मैं इसको in terms of its factors लिख सकता हूँ, लीडिंग कोएफिशिएंट इसका a n है, मैं इसको लिख सकता हूँ summation j runs from 1 to n z minus zj. Okay, now if I take log of both sides, log of pz should be log of the right hand side, so the product becomes the sum. You would have log of an plus summation j runs from 1 to n log of z minus zj. Now if you differentiate it, an to constant है, so you would get p dash z divided by p of z. Of course यहाँ तो आएगा 0, यहाँ आएगा summation j runs from 1 to n 1 by z minus zj.
स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ है ही नहीं, यानी विच इज 1 बाई z माइनस z1 प्लस 1 बाई z माइनस z2। ये हम इससे पहले भी कहीं पे यूज कर चुके हैं, ठीक है। सो लेट w be a critical point of p, critical point of p, that is 0 of p dash. Now if w is also, या हमें दिखाना क्या है, चलो मैं लिखता हूँ। Now we have to show, मतलब कोई भी क्रिटिकल पॉइंट हो, हमें दिखाना है इसका जो मॉडुलस होगा वो लेस देन इक्वल टू दिस कैपिटल आर है। नाउ सपोज w is equal to zj for some j, then there is nothing to prove. Why? ये कभी कभी होता है ना, nothing to prove। मेरे कहने का मतलब है, अगर तुम्हारे पास हो z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1, ठीक है ना, ऑफ कोर्स p ऑफ z, p ऑफ 1 इज 0 है ना, लेकिन अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, 1 इसका 0 है ना, 1 माइनस 2 प्लस 1, तो यू कुड हैव, अगर मैं p डैश z लूं, वो होगा 2 into z minus 2. So that means p dash of 1 is also equal to 0. Now, in case you have a repeated root, then it would also be the 0 of the derivative, it would also be a critical point. Then there is nothing to prove, क्योंकि zj तो already है by definition zj का जो norm है वो less than equal to r. So suppose w is not equal to zj for any j lying between 1 to n, so that p of w जो है वो 0 नहीं होगा। तो hence p dash w divided by p of w, न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, it would be p of w, तो ये 0 होगा, which implies that summation, ये हमने यहाँ पे किया था, what is pz, p dash z by p of z जो है वो है summation 1 by z minus zj, j runs from 1 to n। अब इसी में w लगाएंगे, so लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा 1 by w minus zj, j runs from 1 to n, this thing is equal to 0, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है। अब हम यूज करेंगे, सिंपल सी बात ये है कि हम यूज करेंगे कि 1 by z, 1 by whatever, 1 by a for any complex number is always equal to a bar by mod a square. Now it's the simple formula because a into a bar is mod a square. तो 1 by a है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ summation j runs from 1 to n, right? I can write it as w minus zj bar whole divided by w minus zj bar का square is equal to 0. Okay, taking the conjugate on both sides, 0 conjugate is 0 conjugate, और conjugate का conjugate जो होता है वो वापस हमें complex number मिलता है, यानी you will get summation j runs from 1 to n w minus zj divided by mod of ऐसा is equal to 0. अब जरा इसको अगर हम राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो हमारा काम हो गया। Okay, this would imply summation j runs from 1 to n w divided by modulus of w minus zj का square is equal to summation j runs from 1 to n zj divided by w minus zj का square. Okay, अब यहाँ w का सम के साथ कुछ नहीं है, w को बाहर निकालते हैं, so it will be w j runs from 1 to n 1 by z minus zj का square is equal to summation j runs from 1 to n zj divided by w minus zj का square.
Now taking the modulus on both sides, it implies that modulus of this thing is equal to modulus of this thing. चलो, okay, it implies that अब मैं यहाँ लिखूंगा modulus of w. ये तो पॉजिटिव ही था, इसको क्या फर्क पड़ेगा? Summation j runs from 1 to 1 by w minus zj का स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव ही था. It should be equal to mod of, क्योंकि zj अंदर है, so इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ. Summation j runs from 1 to n, मैं इसको ऐसे लिखूंगा zj ऐसे into 1 by w minus zj का होल स्क्वायर. should I write it like this? नहीं, ऐसे ही बाहर ही रखो मॉड. अभी यहाँ अंदर मॉड नहीं है, क्योंकि चलो ऐसे ही रखते हैं, zj है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? we know that zj जो है it is less than equal to r. It implies that mod of w into summation j runs from 1 to n 1 by w minus zj का स्क्वायर is less than equal to r times summation j runs from 1 to n 1 by w minus zj का स्क्वायर. यहाँ जरा ये थोड़ा गंदा हो गया तो इसको रब करते हैं. तो यहाँ स्क्वायर है और रीजन क्या है? ऑफ कोर्स बिकॉज zj इज लेस देन इक्वल टू r. ओके, अब ये कैंसिल करेंगे तो we would get w is less than equal to r. Now since w was an arbitrary point, arbitrary 0 of p dash z, therefore all the zeros of p dash z lie inside, and they satisfy this equation, and we are done. ठीक है, लेकिन एक्चुअली अगर मुझे ये मतलब अगर हम इसी को यहीं पे देखते ना तो इस वाज सफिशिएंट, हमें यहाँ आगे करने की जरूरत नहीं थी. बट नेवरदलेस मैं अभी इस पे आऊंगा फिर से ये इक्वेशन. ओके 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 ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव. ये हो गया गाउस-लूकास थ्योरम. इसके बाद हम कर सकते हैं इसकी एक कॉरोलरी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. देखो अभी तक हमने क्या किया, जो गाउस-लूकास थ्योरम वो ये कह रहा है अगर ओरिजिन पे किसी डिस्क में आपके सारे के सारे जीरोस हैं पी के, तो पी डैश के जीरोस भी इसी डिस्क में आएंगे. ठीक है ना. अब जो कॉरोलरी है वो हम ये कहेंगे कि नहीं, ये जीरो अगर हम इधर कोई डिस्क लें सेंटर्ड एट सम पॉइंट सच दैट पी के सारे जीरोस इसी में आएंगे, तो पी डैश के जीरोस भी इसी में आएंगे. उसमें कुछ खास करना नहीं. कॉरोलरी, if all the zeros of pz, let me write it, summation जो भी है j runs from 1 to n a sub j is at least per j of degree n lie inside a circle, inside चलो मैं circle लिखता हूँ. Mod z minus c is less than equal to r, then all the zeros of p dash z also lie in mod of z minus c less than equal to r. मतलब जो मैं अभी कह रहा था, उसका प्रूफ बड़ा सिंपल है. Now since all the zeros of pz lie inside mod z minus c is less than equal to r, then all the zeros of qz, अगर मैं polynomial ऐसे डिफाइन करूं, p of z plus c,
Of course, this is again a polynomial. Just मतलब जैसे अगर तुम्हारे पास कोई polynomial है z square plus 3z plus 5, अगर मैं z की जगह z plus c लिखूं तो वो भी एक polynomial ही आएगा. Of course, उसके coefficients चेंज हो जाएंगे. तो ये again एक polynomial है. और इसके zeros क्या होंगे? इसके zeros होंगे, देखो q of zi minus c क्या होगा? ये होगा p of zi minus c plus c. होगा ना p of zi, जो कि 0 है. तो अगर z i 0 है p का, तो q z यानी p of z plus c के zeros होंगे z i minus c. ये लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब दिस इज अंडरस्टूड. देन ऑल द zeros of q z z i minus c, है ना, बाय डेफिनेशन हमें है कि सारे zeros यहाँ हैं इसके. तो उसका मतलब क्या हुआ, z i minus c जो है वो लेस देन इक्वल टू r है. यानी इसके zeros, मतलब उसको मैं कह सकता हूँ q of w i या whatever, तो w i's हैं जो कि ये हैं, so they would be less than equal to r. So then all the zeros of p of z plus c and qz will have, then will lie inside the disk. Inside mod z less than equal to r. Hence, by Gauss-Lucas theorem, all the zeros of p dash at z plus c lie inside mod of z less than equal to r, right? लेकिन इसके zeros क्या होंगे? So अगर मैं लूँ p dash of, मान लो p का p of w is equal to p dash of w is equal to 0, उसका मतलब p dash अगर मैं लूँ अब कोई दूसरा polynomial q या ले लो r, r of z is equal to p dash of z plus c, इसके zeros क्या होंगे? Of course इसके zeros होंगे w minus c, because वो होगा p dash of w minus c, यहाँ लिख दिया हमने तो वो होगा w, वो तो 0 होगा. तो इसके zeros जो होंगे इसके अंदर लाई करेंगे, which implies that अगर अगर उसका मतलब है ना w minus c जो है वो लेस देन इक्वल टू r है, इसका मतलब सारे जो क्रिटिकल जो w मतलब p dash के जो zeros थे, they would lie within w minus c is less than equal to r. That's straightforward, which implies that all the zeros of p dash, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, lie in mod of z minus c is less than equal to r. Actually more is true. अगर हम मैंने अभी कहा था ना वो इक्वेशन, अगर मैं उस पर जरा ध्यान दूं, what was that? अगर मेरे पास z is a critical point, any critical point of p, by that I mean 0 of p dash, and z1 up to zn are zeros of p, तो हमने अभी एक इक्वेशन रिलेशन निकाली थी, समेशन j runs from 1 to n 1 by, what was that, w minus zj का square is equal to summation j divided by यही w minus zj का square. ये हमने किया था ना ऐसे, मतलब जिससे हमने प्रूव किया था. तो अगर हम इस रिलेशन को ध्यान से देखें, ध्यान से क्या देखना है, यू जस्ट पुट अल्फा इक्वल टू, let me say alpha j equal to 1 by w minus zj का स्क्वायर. तो इससे इक्वेशन सिंप्लीफाई हो सकती है कि w is equal to summation, नहीं, w into summation alpha j runs from 1 to n is equal to, of course it is summation alpha j wj, sorry zj. तो आई होप तुम इसको यहाँ देखो तो ज्यादा क्लियर है. तो इट वुड बी zj, j runs from 1 to n, यानी ये बराबर है alpha 1 z1 plus alpha 2 z2 plus so on and so forth alpha n zn. यानी फिर w can actually be written as
alpha 1 divided by summation j runs from 1 to n alpha j plus, of course, multiplied by z1 plus alpha 2 divided by summation alpha j runs from, मैंने दोनों साइड्स को डिवाइड कर दिया, into z2 plus so on and so forth, of course, alpha n divided by summation j runs from 1 to n alpha j zn. अब ये जो नंबर्स हैं, इट्स सम काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस, है ना? और अगर तुम इन जीरोस को देखोगे, अगर मैं इसको लिखूं अब ऐसे, w इज इक्वल टू, इट्स लाइक समेशन, अगर मैं कहूं बीटा जे जेड जे रन्स फ्रॉम 1 टू n, where beta j जो है, it is equal to alpha j divided by summation alpha j runs from 1 to n. तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और इसकी एक प्रॉपर्टी, ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं और सारे के सारे लेस देन 1 है। कैन यू सी दैट? क्योंकि डिनोमिनेटर तो बड़ा है, ये है अल्फा 1 डिवाइडेड बाय होल सम, अल्फा 2 डिवाइडेड बाय होल सम, और सारे के सारे पॉजिटिव हैं क्योंकि ये अल्फा j इज पॉजिटिव है। तो अगर तुम इसको, हम कहते हैं ये जो w है इज अ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ, convex combination of zi's, यानी critical points are convex combination of the zeros. What does that mean? कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन हमेशा होता है, अगर तुम लो 3 पॉइंट्स, इनके लो मतलब ये लो z1 है, ये z2 है, z3 है, तो अगर मैं इसको ट्राइंगल बना दूं, इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूं, ये जो ये सारे का सारे रीजन है, इट देन कैन बी रिटन एज अल्फा z1 प्लस अल्फा z2 प्लस अल्फा z3, where of course alpha i's are positive but less than 1. You can always do that. मतलब this is the region. उसका मतलब ये हुआ कि ये जो है, ये अगर तुम्हारे पास जीरो, W भी इसी टाइप की एक कॉम्बिनेशन है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट इज ए कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ द जीरोस, विच वुड मीन कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारे जीरोस हैं, अगर तुम उनको ऐसे 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 जोड़ दो, चाहे कहीं पर भी हो, तो क्रिटिकल पॉइंट्स इसी रीजन में कहीं पे होगा, क्योंकि इट वुड बी ए कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। सो ओके, ये मैं ऐसे ही इसको, मतलब इससे भी हमारा प्रूव हो जाता ना, अगर मैं यहीं पे ये आइडिया यूज करूं, तो अगर फिर सारे जीरो सर्कल में है, डिस्क में है, तो जीरो जहां पे होंगे तो जो उन्हीं के अंदर तो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे ना, उन्हीं के कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। तो इसी को हाईलाइट करेगा हमारा ये दूसरी इसकी कॉरोलरी। ओके, एक तरह की कॉरोलरी है, लेकिन तुम्हारे नोट्स में लिखा गया है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस-लोकस थ्योरम, सो लेट अस राइट इट लाइक दैट। हाँ, इसका मतलब ये जो मैंने डिस्क लिया, इट कुड हैव बीन सॉर्ट ऑफ, इसके बजाय मैं कोई भी कॉन्वेक्स सेट यूज कर सकता था। अगर मैं कहूँ कि अगर किसी स्क्वायर में या किसी पॉलीगन में, मान लो इसमें सारे के सारे जीरोस हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स भी इसी में होंगे, बिकॉज ऑफ जो मैंने अभी कहा। तो यू कैन चेंज डिस्क बाय एनी कॉन्वेक्स सेट, यू कैन चेंज इट बाय हाफ प्लेन, है ना? क्योंकि अगर हाफ प्लेन में है तो हाफ प्लेन इज अ कॉन्वेक्स सेट, तो अगर सारे जीरोस यहाँ हैं या यहाँ है हाफ प्लेन में कहीं पे, तो क्रिटिकल पॉइंट्स भी उसी साइड पे, क्योंकि वो कॉन्वेक्स है और ये जीरोस की कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। सो वो भी इससे प्रूव हो गया। इसका मतलब वो रोल्स थ्योरम भी इससे प्रूव हो गया, क्योंकि अगर सारे के सारे जीरोस अब रियल नंबर्स में है ना, यहाँ पे हैं सारे के सारे, तो उनकी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन जो है, कॉन्वेक्स हल जो उसका होगा वो यही सेट होगा, तो उन्हीं में कहीं पे क्रिटिकल पॉइंट्स भी होंगे। नेवरदलेस लेट्स डू द, इसी को हाईलाइट करता हुआ एक थ्योरम, वो ये है। ओके, लेट आर, अगर मैं स्मॉलेस्ट रेडियस लूं, आर इज द स्मॉलेस्ट नंबर, एक्चुअली ये जो मैं कर रहा हूँ ये भी उससे प्रूव हो गया जो मैंने अभी आर्ग्यू किया, सच दैट all the zeros of p of z, p dash z, lie inside mod of z less than equal to r, then
at least 1 0 of pz। अब उल्टा है, मतलब वही है कॉन्वेक्स, मतलब कुछ ऐसे है नहीं, लाइज इन mod z ग्रेटर देन इक्वल टू r। क्योंकि ये कॉन्वेक्स हल में होने वाले हैं, तो अगर सारे जीरो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स इधर है, तो कम से कम यहाँ इस बाउंड्री या उससे बाहर एक जीरो तो होना ही चाहिए। प्रूव भी हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे बाय हाइपोथेसिस जो हमें दिया गया है। नाउ आर, बाय हाइपोथेसिस चूंकि तुम्हारे नोट्स में ऐसे लिखा है, बाय हाइपोथेसिस r is the smallest number such that all zeros of p dash z lie inside the disk mod z less than equal to small r। assume to the contrary, अब हम क्या दिखाना चाहते हैं, कम से कम एक जीरो यहाँ होगा। Now, assume to the contrary, all zeros of p of z lie in mod z strictly less than r। ये हुआ ना इसका कॉन्ट्रडिक्शन, कि एक जीरो कम से कम यहाँ होगा, हम कह रहे हैं मान लो सारे के सारे वहां नहीं है, कोई भी नहीं है। So therefore there exists, I can say therefore there exists, we can always find an r1 less than r such that all the zeros of p lie inside mod z less than equal to r1। Then by Gauss-Lucas theorem, all zeros of p dash z also lie in mod z less than equal to r1, which is less than r, which contradicts the fact that r is smallest number such that all zeros of p dash z are inside, मैं लिख ही नहीं पा रहा, मेरा हाथ इतना ठंडा हो गया, is less than equal to r। ठीक है ना? And this contradiction proves जो हमें चाहिए था कि एटलीस्ट 1 0 of pz lies inside mod z greater than equal to r, स्मॉल r है यहाँ पे। ओके, ये हो गया इसका। अब इससे हम एक और चीज प्रूव कर सकते हैं, जो कि मतलब इससे बड़ी अच्छी चीजें प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज हो सकती है कि फॉर एवरी नॉन जीरो कांस्टेंट c, prove that p of z equal to c times z raised power n minus z plus 1, ये जो पॉलिनोमियल है, has a zero, मतलब c कुछ भी हो, मतलब this could, मतलब कोई भी नंबर तो वहां दे लो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, then we can show that इसका कम से कम एक जीरो जो है वो डिस्क ऑफ रेडियस 2 में है, मतलब हैज अ जीरो। ऑफ कोर्स n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी इसकी डिग्री 2 या उससे ज्यादा है, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल में क्या ढूंढना है, वो तो सीधा ही है, क्वाड्रेटिक में भी सीधा ही होता है, लेकिन हम कह रहे हैं n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तो हैज अ रूट इन mod z लेस देन इक्वल टू 2। इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है, या सॉल्यूशन जो भी तुम देखना चाहो, सॉल्यूशन। Now assume to the contrary,
कि इसका कोई जीरो इस डिस्क के अंदर नहीं है। इसका मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं ऑल द जीरोस ऑफ पी ऑफ जेड जो है लाई इन मॉड जेड बिगर देन 2। ठीक है, अगर ऐसा है तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल पॉलिनोमियल लूंगा, यानी z को मैं रिप्लेस करूंगा बाय 1 by z, सो लेट q of z be equal to z raised power n p of 1 by z, जो कि बराबर होगा, अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो pz की जगह 1 by z लिख लो, फिर z raised power n से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट zn minus z raised power n minus 1 plus c। सो अगर मैं ये पॉलिनोमियल लूं तो इसके जीरोस होंगे 1 by z, है ना, बिकॉज q ऑफ सपोज p of zi is equal to 0, तो इसका मतलब q ऑफ 1 by zi जो होगा ना वो क्या होगा, 1 by zi raised power n, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, होगा p ऑफ 1 by zi, सो वो होगा 1 by zi in raised power n into p of zi, दैट्स इक्वल टू 0। यानी क्यू के जीरोस क्या हैं, वो रेसिप्रोकल जीरोस होंगे उसके, isn't it? सो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि इसके जीरोस है 1 by zi। अब चूंकि zi मैंने माना है ग्रेटर देन 2 है, तो 1 by zi वुड बी लेस देन 1 by 2, है ना। सो देयरफॉर ऑल द जीरोस ऑफ qz, जो कि उसके रेसिप्रोकल होंगे p के जीरोस के, सो ऑल लेट देन all the zeros of qz lie inside mod z less than half. So which implies by Gauss-Lucas theorem, all the zeros of q dash z also lie inside mod of z less than half, है ना। लेकिन q dash z अगर जीरो है तो उसका मतलब बनता है, इसको डिफरेंशिएट किया, do you get n times z raised power n minus 1, then you have minus n minus 1 into z raised power n minus 2 is equal to 0, which implies that cos n z raised power n minus 2 common निकालेंगे, you will get n times z minus n minus 1 is equal to 0, which implies that one of the zeros of q of z is nz minus n minus, सीधे लिखता हूँ, z is equal to n minus 1 divided by n, which is greater than equal to half for all n greater than equal to 2, क्योंकि हाफ से बड़ा ही होगा, तुम चेक कर सकते हो 1/2 आएगा, ये 1/2 तो हाँ 1/2 या फिर, सो एक कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हम कर चुके हैं कि इसके सारे जीरोस हैं विद इन z mod z less than equal to half, and the contradiction proves the result. Contradiction proves our result. ये खत्म होने वाला है, लेकिन आज मैं एक ही क्लास लूंगा, मुझे बहुत ठंड लगी। इट शोज ये लेस देन 1 मिनट दिखा रहा है, तो अभी ये खत्म होने वाला है, तो एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही है। हेलो, एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही है? आमिर तुम अटेंडेंस देख लेना, तो अभी ये खत्म होने वाला है।